last lecture we have seen that what is mean by the enthalpy, then what is mean by the energy. Okay, and also we had seen the first law of thermodynamics and Joule's experiment. ओके वो सब हमने देखा था. जूल्स एक्सपेरिमेंट क्या है वो हमने देखा था. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने लास्ट टाइम देखा था. ओके, देन जूल एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंगली कंक्लूजन जो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. thermodynamic first law for your cyclic as well as your for non-cyclic process also, that we are also covered. Then what is meant by the internal energy, that we are covered. एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी का मतलब भी हमने वहाँ पे देखा था. ओके, देन दिस इज अ thermal energy reservoir that we are also covered. Then second law of thermodynamics. Okay, have you started with the second law of thermodynamics? Yeah. No, sir. Okay. No, sir. Okay, I think only we have taken the first law of thermodynamics and enthalpy. वहाँ तक ही देखा था ना शायद. एंथैल्पी का कंसेप्ट देखा था क्या? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Okay, I think the first law of thermodynamics इतने तक ही शायद हमारा हुआ था. Positive work, negative work, positive heat supplied and negative heat supplied. Okay. Yes, sir. Okay, now let's move towards the next concept, that is the energy. Now let's see, all of you knows that the energy is nothing but the capacity to do work. So energy है different forms. energy के अलग अलग टाइप से या फिर different फॉर्म्स भी हैं. सो अभी यहाँ पे जो है हमें क्या देखना है कि थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी देखनी है. सो थर्मोडायनेमिक का एनर्जी अगर हम देखते हैं तो उसमें आपकी इंटरनल एनर्जी आती है एज वेल एज एक्सटर्नल एनर्जी भी आएगी. ओके, सो अभी इंटरनल एनर्जी जो है वो कौन सी है. सो इंटरनल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी रहेगी. इट मीन्स दैट इज द एनर्जी विच इज possessed ड्यू टू द केमिकल बॉन्डिंग, single bond, double bond, okay, covalent bond, like this. So that is the energy possesses due to the chemical bonding between the molecules, that is the chemical energy. Then next one is the atomic energy. Now every atom has the different atomic numbers. Each atom has different number of nucleus as well as protons also. So depending upon that number of neutrons and protons, every atom possesses their own atomic energy. So that is the internal energy, the energy due to the atomic number of protons, number of neutrons in their molecular structure. The next is the molecular energy. The molecular energy जो है वो आपकी molecular structure से आएगी. मतलब जैसे कि आपने 12th में देखा है FCC structure, BCC structure. Is it, have you seen that in 12th or not? FCC, BCC. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so that is the molecular structure, and due to the molecular structure the atom possesses another form of the energy. So that energy is nothing but the molecular energy. Then external energy, all of you are aware about this one, potential energy and the kinetic energy. Okay, now let's see इंटरनल एनर्जी. अभी इंटरनल एनर्जी जो है मैंने तो आपको पहले कहा कि ये केमिकल, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर, ये सब एनर्जी को मिला के इंटरनल एनर्जी आती है. सो इंटरनल एनर्जी है वो कलेक्टिवली अगर हम देखें तो ट्रांसलेशनल एनर्जी, मतलब हर इलेक्ट्रॉन ट्रांसलेट होता रहता है, आगे जो जाता है पीछे जाता है, दैट इज अ ट्रांसलेशनल एनर्जी. रोटेशनल एनर्जी मतलब वो रोटेट होता रहता है. वाइब्रेशन एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे क्या होता जाता है, वाइब्रेट होता जाता है. केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. सो ऑल दिस इज द न्यू internal energy. Okay, collectively all these addition of these all energies are called as the internal energy. Now this flow work we don't require. Okay, now move towards the enthalpy. अब हम enthalpy की तरफ जाते हैं. Okay, so can anybody tell me what is meant by the enthalpy? Yes, enthalpy के concept में जाते हैं अभी हम. enthalpy मतलब क्या है? बताएं. Algebraic sum of internal energy and flow work. Algebraic sum of internal energy and the flow work. Okay, let's see. Nice. Okay, let's see here. What enthalpy, by conceptually, if we go by the conceptually the enthalpy, then enthalpy is simply nothing but the quantity of heat content. Sorry, quality. It is a quality of heat content. It is the quality of heat content. मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर आप लेते हो तो उसमें हीट जो है, हीट की क्वालिटी क्या है,
हीट की क्वालिटी क्या है, उसके ऊपर ही आपकी एंथैल्पी डिपेंड रहती है। जितने हीट की क्वालिटी अच्छी रहेगी उतनी उसकी एंथैल्पी ज़्यादा रहेगी। दैट इज एंथैल्पी, it is a quality of heat. So generally if you goes by mathematically, then enthalpy is nothing but the algebraic sum. It is the algebraic sum of what? U is nothing but the internal energy. Let's see, the internal energy is denoted by either capital E or small u. Okay, I can use these two notations. So U plus PV. Now P is nothing but the pressure. P is nothing but the pressure. Okay, and V is nothing but the volume. V is nothing but the volume of the system, and P is nothing but the pressure of the system. So this together I can call as the flow work. इस दोनों को मैं क्या बोलता हूँ? फ्लो वर्क बोलता हूँ. वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज द फिजिकल टर्म. सो यहाँ पे जो वर्क है वो प्रेशर इंटू वेलोसिटी रहता है, सॉरी वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम. So here H is equal to U plus PV, that is addition of internal energy and the flow work, that is the enthalpy. Okay, all of you get the concept of enthalpy? Simply there is nothing but the quality of heat content. Yes. Yes, sir. This is the Yes. enthalpy. Yeah. So let's see. Next we have to see this one, heat engine, heat pump, refrigerator. Okay. उससे पहले, वो हमें स्टडी करने से पहले आपको कुछ ये टर्म्स डिफाइन करने हैं, वो आपको पता होना चाहिए. दिस टर्म इज व्हाट? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर. थर्मल एनर्जी रिजर्वायर मतलब कि ऐसा रिजर्वायर या फिर ऐसा स्टोरेज टैंक जहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी मिलती हो, लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी मिलती हो, दैट इज कॉल्ड एज द थर्मल एनर्जी रिजर्वायर. लेट्स सी, इट इज द लार्ज बॉडी विथ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी. मतलब वो क्या रहेगी, आपकी एक बॉडी रहेगी, उसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ क्या रहेगी, हीट रहेगी. एंड विच कैन सप्लाई और एब्सॉर्ब, मतलब वो हीट हम सप्लाई भी कर सकेंगे. वो बॉडी क्या करेगी, वो बॉडी आइदर हीट सप्लाई भी करेगी या फिर हीट एब्सॉर्ब भी करेगी. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एब्सॉर्ब और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी सप्लाइड. दोनों में से कोई भी हो सकता है वो बॉडी. एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड एज द थर्मल एनर्जी रिजर्वायर. थर्मल एनर्जी रिजर्वायर. अगर मैं हीट सप्लाई के बारे में बात करूं, अगर मैं हीट सप्लाई के बारे में बात करूं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, ये जो है इसका एग्जांपल रहेगा सन. इसका एग्जांपल रहेगा सन. इज इट? sun is supplying the large amount of heat in the atmosphere. Yes, is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अगर मैं Yes, sir. अगर मैं एब्सॉर्प्शन की बात करूं, अगर हीट एब्सॉर्प्शन की बात करूं तो atmosphere itself is the absorbent for large amount of heat. Is it? Yes, sir. बरोबर है का? Yes, sir. Yes, sir. सन विल सप्लाई द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. सन क्या कर सकता है, लार्ज अमाउंट हीट सप्लाइड कर सकता है. एंड एटमोस्फियर विल एब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. एटमोस्फियर विल एब्सॉर्ब large amount of heat. So can I call this both as a thermal energy reservoir, atmosphere as well as sun? Yes. Yes, sir. Hmm. Yes, sir. So I can call this both as a thermal energy reservoir. Now let's see, there is again the difference. Both are the same, both are the thermal energy reservoir, but the another term we have also, that is nothing but the source. That is nothing but the source, and another one is the sink. Now you tell me, I have two objects, one is sun and another one is atmosphere. So इन दोनों में से, sun and atmosphere, इन दोनों में से मुझे ये बताओ कि थर्मल एनर्जी सोर्स क्या है, सन है या Sun. एटमॉस्फेयर? Sun. 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 सन. ये क्या रहेगा, सोर्स. मतलब थर्मल एनर्जी सोर्स मतलब क्या रहेगा, इट इज द ऑब्जेक्ट विच सप्लाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. इज इट?
It is object or Yes, which sir. is the it is the body which supplies large amount of heat. That is nothing but the source. And what about the sink again? सन और एटमॉस्फेयर, इन दोनों में से सिंक क्या रहेगा? Atmosphere. 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 So how I can define atmosphere again? Sorry, sink. How I can define the sink? सोर्स को तो मैंने डिफाइन कर दिया, तो सिंक को कैसे डिफाइन करूंगा मैं? Absorb heat. Simply, it is the body which can absorb the large amount of heat. It is the body which absorb the large amount of heat. That is nothing but the sink. Okay, I think this energy source, thermal energy source and thermal energy sink, these both are clear to you. समझ में आया दोनों? Yes. Yes, sir. Now Yes. let's see. Now let's see. We have to study the second law of thermodynamics. अभी हमें second law of thermodynamics सीखना है. I think this second law of thermodynamics you have to also study 12th standard. Is it? हुआ है ना आपको 12th standard में? Yes. झालंय की नाही 12वीत? केमिस्ट्री मध्ये झालेलं असावं असं मला वाटतंय. Yes, sir. Yes. सांगता येईल का कोणाला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय आहे? Yes, can anybody tell me? सांगता येऊ शकतं का? विसरून गेलो है कि नहीं? 12th हो गया तो सब भूल गया मैं. याद रखिए क्या करेंगे. लेट्स सी. केल्विन प्लस एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अभी ये जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके दो स्टेटमेंट है. पहला तो आपका है ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एंड दूसरा है आपका ये क्लॉसियस स्टेटमेंट. दिस इज द क्लॉसियस स्टेटमेंट. इसके ये दो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट. ये दोनों इसके स्टेटमेंट है. सो अभी हमें ये दो स्टेटमेंट देखना है. तो इन दोनों को समझने के लिए पहले थर्मल एनर्जी रिजर्वायर समझना जरूरी था, इसलिए मैंने पहले वो कॉन्सेप्ट लिया. नाउ मूव टुवर्ड्स द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. अभी हम क्या करते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं. तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट समझने के लिए हमें पहले हीट इंजन समझना होगा. वी हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड अबाउट द हीट इंजन, देन हमको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट समझ में आएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द हीट इंजन. एक्चुअली हीट इंजन है क्या, मैं आपको बताता हूँ. लेट्स सी, दिस इज द डिवाइस. हीट इंजन क्या है, एक डिवाइस है. अभी हीट इंजन जो है आपकी नज़रों के सामने रखता हूँ मैं. आपके गाड़ी का जो इंजन रहता है, आपकी गाड़ी में जो इंजन रहता है, टू व्हीलर रहे, फोर व्हीलर रहे, कुछ भी रहे, उसका जो इंजन है वो हीट इंजन है. सो ऑल ऑफ यू जस्ट कीप दैट हीट इंजन इन फ्रंट ऑफ योर आइज. ओके, नाउ लेट्स सी. वो हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन क्या करता है कि सोर्स जो है, सोर्स से क्या करेगा, दिस इज द सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेगा. वो क्या करेगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेगा. उस हीट में से कुछ हीट का कन्वर्जन वो वर्क में कर देगा. देन बाकी जो कुछ बची हुई हीट है Q2, आपकी Q2, वो Q2 क्या करेगा, सिंक में मतलब एटमॉस्फेयर में एक साइलेंसर के थ्रू रिलीज कर देगा. एम आई करेक्ट? यस. Yes, sir. Okay. Okay, all of you do agree with this diagram? Yes, sir. Yes, sir. Now let's see. Now let's see, according to the first law of thermodynamics, हमने जो अभी फर्स्ट लॉ स्टडी किया यहाँ पे जूल्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी, जूल्स का कहना क्या था, हमने ये भी देखा था. जूल्स का कहना क्या था कि पूरा का पूरा वर्क हीट में ट्रांसफर हो सकता है,
पूरा का पूरा वर्क हीट में ट्रांसफर हो सकता है, बट ऑल द हीट कैन नॉट बी गेट ट्रांसफर्ड इनटू द वर्क, इज इट? दिस इज नॉट पॉसिबल, इज इट? बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. All the mechanical work can be get transported into the heat, but all the heat energy cannot be converted into the work. So according to this law, here is the diagram comes. This one, Q1 amount of heat he is taking, and out of this Q1 he is doing the work of W amount. Is it? बरोबर आहे का? Yes, sir. Now let's see here what it means. अभी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है, अभी इसका कहना देखो क्या है. It says that what? It is impossible to construct a device. It is impossible to construct a device. मतलब ऐसा डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना नामुमकिन है that operates on a thermodynamic cycle, कि जो थर्मोडायनेमिक साइकिल्स में ऑपरेट होता रहता है, वो कंटिन्यूसली वर्किंग में रहता है. दैट इज operating in a thermodynamic cycle and what? And produces the mechanical work while exchanging heat with only one thermal reservoir. This is the important. This is the important. What you can just neglect these terms also. आप इसको neglect कर सकते हो, इसको neglect कर सकते हो. इसका कहना क्या है? Impossible to construct a device. What the device doing? It will exchanging the mechanical energy only with one thermal reservoir. सिर्फ एक ही थर्मल रिजर्वायर से ये एनर्जी कन्वर्ट करे, ऐसा डिवाइस मैन्युफैक्चर करना या फिर प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है. अभी मैं इसको आपको इलेबोरेट करके दिखाता हूँ, तब आपको ये समझ में आएगा. देखिए, इनके जूल केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट के बेस पे मैं ये कहता हूँ, इसके बेस पे मैं ये कह पाता हूँ कि विच प्रोड्यूसेस द मैकेनिकल वर्क. मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आउटपुट एज अ मैकेनिकल वर्क ही ले रहे हैं ना. इज इट? yes, sir. यहाँ पे हम मैकेनिकल वर्क Yes, ही ले sir. लिए. नाउ ये मैकेनिकल वर्क कैसे आ रहा है? यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है बिटवीन द सोर्स टू द डिवाइस एंड डिवाइस टू द सिंक. यस, सोर्स टू डिवाइस एंड डिवाइस टू द सिंक, ऐसे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है. एम आई करेक्ट? Yes, sir. नाउ नाउ अभी देखिए, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर यूज करना चाहूँ, अगर मैं ओनली सिंगल एनर्जी थर्मल रिजर्वायर यूज करना चाहूँ, तो मैं कौन सा यूज कर सकता हूँ? सोर्स यूज करता सकता हूँ या फिर सिंक, विच इज मैंडेटरी, आइदर सोर्स और सिंक. Source. इज इट? सोर्स इज द इम्पोर्टेंट ना. विदाउट सोर्स आई कैन डू एनी ऑपरेशन. इज इट? Yes, sir. So it means what? Here, if I am not using the sink, here I am not using the sink, then what should be the quantity of Q2? Q2 क्या आएगा फिर? Yes, if here I am not using the sink, then Q2 क्या आएगा? 0. Obviously it is Zero. 0. Yeah, it's obviously 0 ना. सिंक ही नहीं है तो हीट रिजेक्ट ही नहीं हो रही है. हीट रिजेक्ट ही नहीं हो रही है तो वैल्यू 0 ही आएगी ना. Yes, all of you agree with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, Now, yes. Okay. Now let's see here. यहाँ पे अगर मैंने सिंक नहीं यूज किया तो कितने एनर्जी सोर्स यहाँ पे यूज हुए मेरे? कितने थर्मल रिजर्वायर यूज किए हैं? 6, sir. ओनली सिंगल सोर्स ना. मेरे पास 2 थर्मल रिजर्वायर है. आइदर आई हैव सोर्स एंड आई हैव सिंक. सिर्फ 2 ही थर्मल रिजर्वायर है. अगर मैं यहाँ पे सिंक नहीं यूज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई एम यूजिंग ओनली वन रिजर्वायर.
So you all of you tell me, is it practically possible? No, sir. Yes, No, sir. it is No, not. sir. It is not practically possible. So that is he said in his statement. अभी रीड करो स्टेटमेंट, अब मुझे बताओ कि जो मैंने कुछ अभी पढ़ाया बताया वो स्टेटमेंट से मैच करता है या नहीं, एंड वॉट एवर बी द कंक्लूजन यू हैव टेकन आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, so that conclusion and this statement are same or not. Now read the statement. It is impossible to construct a device that operates on a thermodynamic cycle and produces mechanical work while exchanging heat with only one thermal reservoir. Yes, अभी ये करेक्ट है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब इसने Yes, sir. ऐसा डिफरेंट कुछ बताया क्या केल्विन ने? ऐसा कुछ डिफरेंट बताया या तो हम सब जानते थे? Is it? Yes, sir. अगर मैं भी स्टडी करता तो मैं भी ये स्टेटमेंट लिख सकता. So that is the thing that what I told yesterday you. Successful people don't do the different things. They do does the things differently like this. Okay, जाने दो. हाँ, so this is what Kelvin Planck statement. Now I think this is clear to you. This Kelvin Planck statement. अभी देखिए यहाँ पे, अभी ये जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, हीट इंजन का स्टडी कर लिया. सो इट मींस द हीट इंजन विल वायोलेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑफ केल्विन प्लैंक. केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या करता है, हीट इंजन वायलेट्स करता है. अभी देखिए, अगर अगर गलती से आप लोगों में से किसी ने एक ने ऐसा डिवाइस बना भी लिया, कैसा डिवाइस, ये Q2 जिसका जीरो है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल बट स्टिल किसी ने कुछ रिसर्च करके ऐसा डिवाइस बना भी लिया, तो टेल मी व्हाट इज द इफिशिएंसी ऑफ दिस डिवाइस? 100%. 100%. 100%. It is 100% because all the heat energy is get converted into the work. It means its efficiency should be 100%. And such a machine, if you construct such a device, then this device is called as PMM1, perpetual motion machine of kind 1. अगर आपने ऐसा डिवाइस बना भी लिया तो उसको मैं क्या बोलूँगा, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ काइंड 1. आया समझ में PPM1 क्या है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the PPM1. Now let's see here. अभी देखिए, इसके अगर हम कैलकुलेशंस करना चाहे तो, अगर कैलकुलेशंस हम इसके करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि Q1 जो है, Q1, ओके 1 मिनट, यहाँ पे जो है Q1 मान लीजिए मैं Q1 की अमाउंट जो है ये 100 डालता हूँ. Q1 की अमाउंट क्या रहेगी मेरी, मान लीजिएगा 100. अभी मुझे आप सबको तो ये पता है कि यहाँ पे जो आउटपुट आने वाला है वो तो 100 बिल्कुल भी नहीं है. इज इट 100 रहेगा क्या वो? No, sir. ऑब्वियसली नॉट. सो मान लीजिएगा कि वो आउटपुट आएगा आपका 80. हीट इनपुट रहेगा मान लीजिएगा 100 किलोवाट, आउटपुट आएगा 80 किलोवाट. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2. Q2 क्या रहेगा फिर? 20. ऑब्वियसली 20. जितना मैं हिट दे रहा हूँ उसमें से कुछ वर्क के थ्रू मुझे आउटपुट में मिल रही है, तो जो कुछ बाकी बची हुई हीट है वो तो मेरी वेस्ट ही हो रही है ना. दैट इज 20 किलोवाट. सो हियर कैन आई से दैट Q1 is equal to W plus Q2. Yes, Yes, sir. is it? Yes, sir. Q1 is equal to W plus Q2. So from this W is equal to what? W क्या आएगा फिर? Q1 minus Q2 Q2. minus Q1 minus Q2. It is simply Q1 minus Q2. समजतंय का हे सगळ्यांना मी जे सांगतोय ते?
Yes, Yes, Oh, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So W is equal to Q1 minus Q2. Now let's move towards the heat engine. अभी ये हो गया आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. ओके, ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से सब एग्री हो? Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट समझ में आया बेबी सभी को? समझा सर. 12th में समझ गया समझा? सर. 12th में समझा था? हाँ सर. ओके No, सर अभी समझ में आ गया. ओके ठीक है. जिनको No, 12th sir. में समझा था उनके लिए भी कंग्रेचुलेशन, जिनको अभी समझ में आया उनके लिए भी कंग्रेचुलेशन. ओके, सो दैट इज द थिंग्स यू शुड हैव टू एंजॉय द कंसेप्ट. जब आप कंसेप्ट एंजॉय करोगे ना तब आपको समझ में आएंगे, और जब आपको समझ में आएंगे तभी आप एंजॉय करोगे. सो जस्ट read the all the sentences, all the statements and all the concept very carefully. Okay, and by showing your interest in that, then it should be the easy. तभी जाके आपको easy लगने लगेंगे. If you are learning only the sake of examination, then it may be get hard. But when you are learning for your knowledge purpose, then it should be easy. ये तब आपको easy लगने लगेंगे. ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द हीट इंजन. अभी हम हीट इंजन की तरफ बढ़ते हैं. एक्चुअली हीट इंजन तो मैंने आपको अभी भी बता दिया है, तो उसमें ज़्यादा बताने की दूसरी कुछ ज़रूरत नहीं है. बट स्टिल लेट्स सी ओनली द डेफिनेशन ऑफ हीट इंजन. हीट इंजन की डेफिनेशन क्या है हम अभी देखते हैं. लेट्स सी, इट इज़ व्हाट द मैकेनिकल डिवाइस. ये क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है विच वर्क्स ऑन द थर्मोडायनामिक साइकिल. एक साइकिल में वर्क होता है, कंटिन्यूसली रनिंग में रहता है ना आपका हीट इंजन. पेट्रोल लेगा, उसका कंबशन करेगा, एनर्जी देगा, हीट बाहर फेंक फेंक देगा, फिर बाद में पेट्रोल लेगा, एनर्जी कन्वर्ट करेगा, वर्क मिलेगा, एनर्जी बाहर रिलीज करेगा. सो दैट इज इन अ साइकिल, इज इट? So it is a mechanical device which work on the thermodynamic cycle and what, let's see, this is important, and which converts thermal energy into mechanical work. हीट इंजन में क्या होती है? जो आपकी थर्मल एनर्जी है, पेट्रोल जो है, पेट्रोल केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा? आपके थर्मल एनर्जी में होगा बाय द कंबशन ऑफ पेट्रोल, एंड दैट थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल वर्क. ये फिर मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगी. सो दैट इज द हीट इंजन. यस, ऑल ऑफ यू एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ हीट इंजन? हीट इंजन की डेफिनेशन आई समझ में? आगे सर. सो हीट इंजन जो है, हीट इंजन हम पेट्रोल इंजन को भी हीट इंजन बोल सकते हैं. गैस टरबाइन जो है, गैस टरबाइन भी हीट ही इंजन है, क्योंकि वहाँ पे हम हाई टेम्परेचर गैसेस सप्लाई करते हैं और वहाँ से हम मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं. स्टीम इंजन एंड एज वेल एज द स्टीम टरबाइन. स्टीम टरबाइन इज आल्सो द हीट इंजन, सॉरी, हाँ हीट इंजन. स्टीम टरबाइन इज आल्सो द हीट इंजन, वो भी हीट इंजन ही है. बरोबर है का? ऑल दिस एग्जांपल्स सर, यस, ऑल दिस एग्जांपल्स आर क्लियर. पेट्रोल इंजन, gas turbine, steam engine and steam turbine. Yes. Yes, sir. So this is the heat engine. तो ये सब एक heat engine ही है. Now let's see, move towards the expression for the heat engine. अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम heat engine की efficiency देखने वाले हैं. तो let's see here. Efficiency तो आप सबको पता ही है. Generally the efficiency is what? Output upon input. Generally the efficiency is what? Output upon input. Now you tell me, हीट इंजन में आउटपुट क्या है हमारा? वर्क आउटपुट है. दिस इज द वर्क, या मैकेनिकल वर्क, शाफ्ट एनर्जी, दिस इज द आउटपुट. लेट्स सी, नाउ टेल मी व्हाट इज द इनपुट फॉर दिस. इसके लिए इनपुट क्या है? ये हमें मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्क आउटपुट मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हीट चाहिए. Q1 हीट आउट. यस, Source. हीट एनर्जी देनी पड़ेगी ना. एम आई राइट? Yes, sir. वर्क चाहिए तो हीट देनी पड़ेगी. सो यहाँ पे जो आउटपुट है, ये आउटपुट आया देखो आपका W. Here is, this is the W, and input रहेगा Q1. Now instead of Q1 here I write QH, high temperature heat, and TH, sorry, TH is the high temperature, QH is the high heat, QL low heat, and TL low temperature. Okay, H stand for only high and L stand for low.
So here output is equal, sorry, efficiency is equal to output upon input. So output तो आया आपका W and input आया आपका heat supplied QH. Now let's see. अभी मैंने आपको पहले भी यहाँ पे डिराइव किया हमने. Let's see here, work is equal to what? Q1 minus Q2. Is it? ये जो हमने फाइंड किया. So यही मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ. W is equal to Q1 minus Q2. So Q1 तो नहीं है, so Q1 को मैंने QH कह दिया है. Q1 को QH कहा है एंड Q2 को मैंने QL कहा है. सो ये आया आपका W आउटपुट, W, एंड दिस QH एज इट इज, दिस QH नीचे एज इट इज. सो व्हेन आई सेपरेट द डिनोमिनेटर, सो हियर इट वाज व्हाट, ये आएगा आपका QH डिवाइडेड बाय QH, देन QL अपॉन QH, देन ये आएगा आपका QL अपॉन QH. Now this QH become cancel, it become 1. This minus symbol as it is here and QL upon QH. So it become 1 minus QL upon QH. Yes. Is it correct? बरोबर है क्या है? Yes, sir. Yes, sir. So Yes. let's see here what I am doing. I am changing this heat in terms of temperature. So for that, let's see, all of you know that Q is equal to mCp delta T. Is it? Q is equal to mCp delta T. So T is nothing but the temperature. So let's see here. Q is equal to mCt. Now QH क्या आएगा मेरा? Here QH आएगा मेरा mCp तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि फ्लूइड आपका कांस्टेंट है, एंड T जो है T अलग रहेगा, यहाँ पे TH रहेगा, डिवाइडेड बाय QL इज इक्वल टू, QL क्या आएगा? mCp सेम रहेगा, इंस्टेड ऑफ TH हियर इट बिकम TL. सो मास कांस्टेंट है, कैंसल. Cp की वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी कैंसल. सो हियर QH अपॉन QL इज TH अपॉन TL. सो इंस्टेड ऑफ QL अपॉन QH, इसको उल्टा किया तो भी सेम ही आएगा. QL अपॉन QH, ये आया मेरा सिंपली TL अपॉन TH. सो दिस टू टर्म्स आर हियर. Efficiency is equal to 1 minus QL upon QH is equal to 1 minus TL upon TH. आया समझ में सभी को? Efficiency of heat engine का डेरिवेशन समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. किसी को कोई डाउट डेरिवेशन Yes. में? Yes. Have any doubt in this? Okay. Now let's move towards the second statement, Clausius statement. फर्स्ट स्टेटमेंट सभी को समझ में आया, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. सेकेंड लॉ के दो स्टेटमेंट है, केल्विन Yes, sir. प्लैंक एंड क्लॉसियस. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द सेकेंड क्लॉसियस स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं. अभी क्लॉसियस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम पहले समझते हैं रेफ्रिजरेटर को. हम पहले किसको समझ लेते हैं? रेफ्रिजरेटर को. देन आपको क्लॉसियस स्टेटमेंट समझ में आएगा. सो लेट्स सी हियर व्हाट एक्चुअली हैपन इन द रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं हम? यहाँ पे फूड रखते हैं. मान लीजिए अभी आइस का एग्जांपल लेते हैं, हम आइस का एग्जांपल लेंगे. रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं? आइस रखते हैं. देन अगर उस आइस को हमने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला तो उस आइस का कन्वर्जन किस में होगा? वाटर में होगा. ओके, मान लीजिएगा इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ आइस इज -4 डिग्री सेल्सियस एंड आफ्टर सम टाइम दिस बिकम द वाटर ऑफ टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस. नाउ यू टेल मी, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, मुझे किसी टाइप का एक्सटर्नल वर्क देने की जरूरत पड़ी थी क्या? आइस को No. वाटर में कन्वर्ट करने No, के sir. लिए नो, आहे का नाही? मला याला काही कसलाही बाहेरून वर्क देण्याची गरज पडली नाही. फॉर दिस देर इज नो एनी वर्क रिक्वायर्ड. W is equal to 0. And here you tell me,
the heat is, you know that the heat always flows from high temperature to low temperature. It means the here heat is transferred from what atmosphere to this ice. Heat is transferred from atmosphere to the ice. It is possible naturally, is it? Heat is always flows from high temperature to low temperature, so it is possible naturally. Now यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर क्या हुआ आपका, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इज इट? एटमॉस्फेयर क्या हुआ, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, यस, इज इट? So, एंड नाउ इफ आई टेक द Yes, sir. एग्जांपल ऑफ दिस आइस, सो आइस क्या होगा आपका, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। इसका मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर, अगर मुझे हीट ट्रांसफर करनी है तो देर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क, मुझे कोई भी वर्क करने की जरूरत या फिर सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट इफ आई टेक द रिवर्स ऑफ दिस, अब रिवर्स करो, वाटर का कन्वर्जन मुझे क्या करना है, आइस में करना है, वाटर का कन्वर्जन आइस में करना है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, आइस से हीट निकालनी है, sorry, water say here, sorry, here what I have to do, here I have to extract the heat from the water, I have to extract the heat from the water, and that heat I have to reject in the atmosphere, that heat I have to reject in the atmosphere. Is it possible without any external work? Yes, वाटर से हीट निकालनी है मुझे, एंड वो जो हीट है वो मुझे क्या करनी है, एटमॉस्फेयर में सप्लाई करनी है। सो इज इट पॉसिबल विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क? No, No. sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. Yeah, how it is possible without external work? I think it is absolutely not. We should have to give the external work ना, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर मेरा 28 डिग्री सेल्सियस है, एंड सिमिलरली एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर मेरा 28 डिग्री सेल्सियस ही है। सो हाउ द हीट एक्सचेंज विल बी देयर? हीट एक्सचेंज कैसे होगी यहाँ पे? बिल्कुल नहीं होगी ना। अगर करना ही है मुझे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली यहाँ से हीट एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, एंड वो हीट मुझे क्या करनी पड़ेगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क देने की जरूरत पड़ेगी। So naturally it is possible to convert ice into water, but it is not possible to convert water into ice. It means I am absorbing the water heat from the water and releasing it to the atmosphere. So जैसे जैसे heat आपकी कम होती जाती है water की, वैसे वैसे वो क्या हो जाएगा, ice में convert होगा। but उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, external work देने की जरूरत है। here I have to give some external work, यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क चाहिए। यहाँ पे मुझे वर्क की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे मुझे वर्क देने की ज़रूरत पड़ रही है, एंड दैट इज़ व्हाट द योर रेफ्रिजरेटर इज डन। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, आप जो फूड उसमें रखते हो, लेट सपोज वाटर रख लिया मैंने, वाटर में से क्या करता है रेफ्रिजरेटर, हीट एब्सॉर्ब करता है, एंड वो जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता रहता है। जो फूड आपने उसमें रखा है, उस फूड की हीट एब्सॉर्ब करता है वो, एंड वो हीट क्या करता है रेफ्रिजरेटर, एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। So it means here my task is what? I have to transfer the heat. I have to transfer the heat from what? Low temperature reservoir to high temperature reservoir. Is it? ये जो second case है, yes, समझते का है? आहेत का गेले सगळे? आहेत. सर एकदा रिपीट करा ना. रिपीट करा सर. Let's see here. I will repeat it again. 1 minute. Actually, I don't have the pen tab. That's why I have to face this issue.
पण लेक्चर तर घ्यावंच लागेल आहे का नाही. लेक्चर न घेता कसं चालायचं. पैसे भरलेले आहेत तुम्ही, मी पगार घेतोय, त्यामुळे लेक्चर घेणं गरजेचं आहे. हे बा, this is the ice. Ice, this is the ice. Now here what I am doing, here I am taking the heat from the ice and just supplying to the atmosphere. So that's why this ice becomes water. Actually I am not extracting the heat from the ice, here I am supplying the heat to the ice. Atmosphere क्या कर रहा है, ice को heat supply कर रहा है. समझ रहे हैं? Atmosphere क्या कर रहा है, ice को heat supply कर रहा है. This is the atmosphere. Atmosphere will supplying the heat to the ice. Ice को heat supply कर रहा है. That's why the हा नाव टेल मी. आता मला सांगा ॲटमॉस्फिअरचं टेम्परेचर किती आहे माझं, 28 डिग्री सेल्सियस. आय हॅव द ॲटमॉस्फिअर टेम्परेचर एज 28 डिग्री सेल्सियस. अँड व्हॉट इज द टेम्परेचर ऑफ आईस, -4 डिग्री सेल्सियस. इज इट? हे समजलं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now sir. let's see, after some time what I'm doing, ये आइस थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू होगा. क्यों? क्योंकि अभी उसका टेम्परेचर क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया. बट ये 4 डिग्री सेल्सियस कैसे हुआ, ये 28 डिग्री सेल्सियस है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 28 ही है एंड आइस का 4 डिग्री सेल्सियस ही है. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये टेम्परेचर जो है कम होता जा रहा है, मतलब सॉरी बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है. एटमॉस्फेयर का 28 ही है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हियर आई विल राइट. आपने छोटा सा एक रूम रखा है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रखता हूँ, यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर रखता हूँ. सो पहले एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना था मेरा, 20th, सॉरी आइस का रखता हूँ यहाँ पे आइस का रखता हूँ. एंड आइस का कितना था पहले मेरा, -4. कुछ टाइम के बाद एटमॉस्फेयर का 28 ही रहा, बट वो आइस का कितना हुआ, 4 हुआ. फिर कुछ देर के बाद एटमॉस्फेयर का तो 28 ही रहा, लेकिन आइस का कितना हुआ, 10 हुआ. देन कुछ टाइम के बाद एटमॉस्फेयर का 28 है, आइस का 20 हुआ. एंड आफ्टर द लॉन्ग टाइम एटमॉस्फेयर का 28 आ रहा एंड आइस का भी 28 ही हुआ. सो जब आइस का टेम्परेचर 28 हुआ तब ये आइस क्या हुआ था, वाटर बन चुका था. हे समजलं? Yes, sir. हे काय बरोबर आहे का चुकीचं आहे, हे सांगितलं ते. यस. जिसको पहले समझ में नहीं आया था, ये आया समझ में आपको. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस. Yes, इट sir. मीन्स नाउ लेट्स सी, अभी ये जो कुछ यहाँ पे हुआ, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, एटमॉस्फेयर टू आइस हुआ या आइस टू एटमॉस्फेयर हुआ? Atmosphere to ice. Atmosphere to ice. Yes, so all of you agree with this, the temperature is transferred from what, atmosphere Yes, sir. to ice. The temperature is transferred. So here the temperature is transferred, matlab heat. Actually temperature is not transferred, heat is transferred. So here the heat Q is transferred from atmosphere to ice. मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर में हुआ या लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हुआ? High to low. रिजर्वायर से लो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर तक हुआ. अभी आप मुझे आगे बताओ, अभी ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 28 ही है, वाटर का भी अभी 28 ही है, तो अभी आप मुझे बताओ कि इसका 28 होगा एंड इसका 30 होगा, ये हो सकता है? Is it possible? No, Is sir. this case? Absolutely not. No, sir. Yes, it is possible, but for that you have to again supply the heat
which should be greater than 28. Is it? ये होगा, Yes, लेकिन sir. उसके लिए आपको इसको हीट करना पड़ेगा, बट नेचुरली इट इज पॉसिबल. No, sir. नेचुरली इट इज नॉट पॉसिबल ना, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो अभी देखो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर हीट नेचुरली पास होती है, ये सब आप लोग एग्री हो अभी ना. अब इसके मैं बिल्कुल उल्टा करता हूँ. अभी आप मुझे ये बताओ कि ये जो कुछ हुआ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये जो कुछ हुआ, इसके लिए मुझे कुछ वर्क सप्लाई करने की जरूरत पड़ी थी क्या? एक्सटर्नल वर्क देने की जरूरत पड़ी थी क्या? No, sir. Here the work requirement is No, sir. absolutely zero. Work requirement is absolutely zero. बरोबर? Yes, sir. Now let's take the reverse. अभी रिवर्स करते हैं हम. अभी हमें क्या करना है? Okay, I will just here is this one. अभी मैं क्या करता हूँ, इसका बिल्कुल उल्टा करता हूँ. यहाँ पे बिल्कुल उल्टा करता हूँ. यहाँ पे टेबल लिखता हूँ मैं. Here I will take the another table. यहाँ पे मैं लिखूंगा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एंड वाटर का टेम्परेचर. ना फर्स्टली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो मेरा 28 डिग्री सेल्सियस ही है एंड वाटर का भी 28 ही है. कुछ देर के बाद एटमॉस्फेयर का भी 28 ही होगा, वाटर का भी मेरा 28 ही रहेगा. अगेन कुछ घंटों के बाद एटमॉस्फेयर भी 28 है, वाटर भी 28 ही रहेगा. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? यस, क्योंकि मैं ना ही वाटर से कुछ हीट निकाल रहा हूँ, ना ही वाटर में हीट ऐड कर रहा हूँ. इज इट? बरोबर का? Yes, yes. बराबर. नाउ अच्छा. लेट्स सी. अभी देखो, अभी मैं क्या करता हूँ. अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने शुरुआत में लिया वाटर. मैंने शुरुआत में लिया वाटर. अभी यू ऑल ऑफ यू लेट्स सी. वाटर का टेम्परेचर मेरा 28 डिग्री सेल्सियस है एंड एटमॉस्फेयर का भी मेरा टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस ही है. सो वाटर से मैं हीट निकालना चाहता हूँ एंड एटमॉस्फेयर में वो हीट देना चाहता हूँ. सो इज दिस पॉसिबल विदाउट प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल वर्क? यस, जिनको No, समझ में No, नहीं sir. आया, not possible, sir. जिनको External समझ work is required. जिनको समझ में नहीं आया था वो एक बार मुझे बताओ. यस, इज इट पॉसिबल विदाउट एक्सटर्नल वर्क? No, sir. नो. sir. No, sir. नाउ लेट्स सी. अभी मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल वर्क सप्लाई करता हूँ, मतलब मैं रेफ्रिजरेटर का यूज करता हूँ. अब मैं क्या करता हूँ, रेफ्रिजरेटर का यूज करता हूँ. अब देखो, रेफ्रिजरेटर का यूज करने के बाद क्या होता है यहाँ पे, एक आधा घंटे के बाद जब मैंने वाटर फ्रिज में रखा, तब तो सेम यही रहेगा. एटमॉस्फेयर का भी 28 है, वाटर का भी 28 है. आधा घंटे के बाद एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? यस, एटमॉस्फेयर का बढ़ेगा. No, sir. नो. इट मीन्स अप टू द लास्ट ऑब्जर्वेशंस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सेम उतना ही होता रहेगा, उतना ही रहेगा, वो बिल्कुल भी कम नहीं होगा. अभी मैं क्या करता हूँ, आधा घंटे के बाद 28 का टेम्परेचर 20 हुआ मेरा. इज इट? Yes. बरोबर. और Yes. आधा घंटे के बाद इस 20 का मेरा 15 हुआ. और आधा घंटे के बाद 15 का 10 हुआ. और आधा घंटे के बाद मेरा कितना हुआ? 0. एंड फिर और आधा घंटे के बाद वो हो गया मेरा -4. लेकिन ये कब हुआ? जब मैंने रेफ्रिजरेटर यूज किया तब ये हुआ. इज इट? Yes, sir. Yes, sir. अभी अभी आप मुझे ये बताओ, इसमें मुझे ये बताओ, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है मेरा? एटमॉस्फेयर से वाटर में ट्रांसफर हो रहा है या वाटर से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं? Water to atmosphere. आई एम जस्ट एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द वाटर. मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर से हीट एब्सॉर्ब कर रहा हूँ, और जो कुछ हीट मैंने वाटर से एब्जॉर्ब की है वो पूरी की पूरी हीट में क्या कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा हूँ. इज इट? यस, इज इट? Yes, sir. आया Yes, समझ sir. में अभी?
Yes, sir. नाउ यू टेल मी अभी यहाँ पे आप मुझे बताओ कि मैं जो कुछ हीट सप्लाई कर रहा हूँ ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो को कर रहा हूँ या लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में कर रहा हूँ। Low reservoir to high. high reservoir. Low to high. Low temperature Low to to high temperature. So here it means it is water is what? Low temperature reservoir and this is high temperature reservoir. अब आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now let's see. Yes, sir. Naturally it is possible. Naturally ये possible है क्या? LTR to STR. No, naturally it is not possible. So that's why here I am supplying the external work. That's why here I am supplying the external work. आया समझ में अभी सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, sir. अभी भी किसी को कुछ डाउट है? यस अभी भी किसी को डाउट है कुछ? No, sir. No, sir. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्लॉज स्टेटमेंट। अभी हम क्लॉज स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपको क्लॉज स्टेटमेंट समझ में आएगा। ये सभी को समझ में आया ना? STR to LTR and LTR to STR. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. नाउ लेट्स सी हियर। अभी स्टेटमेंट देखो। यस ओके अभी स्टेटमेंट देखो। It is impossible to construct a device. It is highly impossible to construct a device that operates on a thermodynamic cycle, जो thermodynamic cycle में operate होता है, and वो sole effect, sole मतलब जिसका पूरा effect, जिसका पूरा effect क्या है? वो sole effect is what? Transfer of, this is important, this is the important, just let it be, this is important. Transfer of heat from low temperature to high temperature. Okay, इसके आगे एक missing है, ये मैं यहाँ पे डालता हूँ। ओके यहाँ पे आगे मिसिंग है, दिस स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट। ओके हाँ विदाउट आउट सप्लाइंग external work, without supplying external work. हाँ अभी स्टेटमेंट रीड करो। heat from supplying heat from transferring the heat from what? Transferring the heat from low temperature to high temperature reservoir without supplying external work. ओके ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, विदाउट सप्लाइंग एक्सटर्नल वर्क। अभी ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? यस Yes, sir. अभी स्टेटमेंट करेक्ट है ये? अभी समझ में आया? यस Yes, sir. ओके नाउ इट इज इजी। सोपा है ना स्टेटमेंट का अवघड है? सोपा है. So, Yes, sir. Simply what सोपा है. it means, it is impossible to construct a device that operates in a thermodynamic cycle, जो thermodynamic cycles में ऑपरेट होता है। साइकिल्स चलती रहती है ना रेफ्रिजरेटर की, हीट लेगा छोड़ देगा, हीट एब्सॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा, हीट एब्सॉर्ब करेगा फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा, दैट इज द साइकिल। So it is impossible to construct a device that operates on a thermodynamic cycle whose sole effect is transfer of heat from low temperature to high temperature reservoir without supplying the external work. Yes, all of you get this statement? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आता काय अडचण स्टेटमेंट मध्ये? No. Okay, so these are the two statement of second law of thermodynamics. ये second law thermodynamics के दो statement है। अभी let's see this second law thermodynamics will raise the concept of entropy. मतलब जीरोथ लॉ जो था वो टेम्परेचर डिफाइन करता था, फर्स्ट लॉ जो था वो इंटरनल एनर्जी डिफाइन करता था। हमने देखा ना, वर्क टू हीट एंड हीट टू वर्क। सो वो क्या डिफाइन कर रहा था? इंटरनल एनर्जी डिफाइन कर रहा था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या डिफाइन करता है? तो एंट्रोपी डिफाइन करता है। एंट्रोपी क्या है? यस कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द एंट्रोपी?
It is the randomness measured. Randomness. Okay, randomness measured, or can I call it as the disorderness? Yes, Yes. sir. Yes. Okay, I will explain the what is mean by the entropy. अभी देखिए, okay, मान लीजिएगा this is my class, SME subject class. अगर आप सब लोग ऑनलाइन होते ऑफलाइन होते हो तो ऑफलाइन होते हो तो की बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन भी है ही वैसा ही। ओके, दैट इज नॉट अ बिग इशू। जब आप ऑफलाइन हो तो सो क्लास में ऐसे बेंचेस रहते हैं, ये ऐसे बेंचेस रहेंगे 1 2 3 4, ये ऐसे बेंचेस रहेंगे। सो यहाँ पे 2 बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे 2 बच्चे बैठे हैं। अरे बाप रे, चल नहीं रहा है। ओके, इशू है कुछ तो, चल क्यों नहीं रहा है। ओके, सिस्टम का इशू है। ओके, आई विल चेंज द कलर। उसके बाद देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ये यहाँ पे 2 बच्चे हैं, देन यहाँ पे 2 बच्चे हैं। सब बच्चे क्या है, शांति से बैठे हुए हैं। सब बच्चे शांति से बैठे हुए, जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ वो सुन रहे हैं। नाउ दोपहर के बाद आपका प्लेग्राउंड का क्लास है, तो आप सब प्लेग्राउंड में जाते हो। तो एक बच्चा इधर, एक बच्चा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4-5 घर में, 2-3 यहाँ से ही चुप के देख रहे हैं क्या चल रहा है दीवार की तरफ से, और फैकल्टी इधर। कोई फैकल्टी को फॉलो कर रहा है, कोई दूसरी तरफ देख भी नहीं रहा है। जब आप ग्राउंड में जाते हो तो इज इट, ये होता है ना। Yes, sir. हाँ, इसको पता है। यस, सो लेट्स सी। आप मुझे अब ये बताओ, इन दोनों में से, ये जो आपका ग्राउंड का क्लास है और जो एसीमी का क्लास है, इन दोनों में से एंट्रोपी ज्यादा किसकी है? यस, Ground. ग्राउंड का जो आपका Ground. प्लेग्राउंड का जो क्लास है उसकी है ना, बिकॉज हियर यू Ground. हैव स्प्रेडेड रैंडमली। यहाँ पे कोई आपकी ऑर्डर ही नहीं है, कोई भी कहाँ पे भी जाके बैठा है। इज इट? सो दैट इज द entropy, that is the randomness or disorderness of the molecules. Disorderness of the molecules, that is nothing but the entropy. And here the entropy of SME class is less, but the work output is more. Is it? Yes. Yes. So Yes. this is the entropy. So the second law will define about the entropy. अभी entropy कैसे define करता है ना, मैं आपको बाद में बताता हूँ। Just right currently just remember this one. The second law will defines the entropy. ये entropy कैसे define करता है मैं आपको बाद में बताता हूँ। So I think this up to this it is clear to you. दोनों statement clear है आपको? Sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So this is for today. अब तक इसमें किसी को कोई doubt? No.